encashment. Okay. No, sorry, medical reimbursement is pending, na? So then we'll calculate. Leave encashment. Okay, so yesterday we have seen how to calculate pension. Okay. Medical reimbursement. Okay. Medical reimbursement, same like pension and provident fund. So we have seen direct problem regarding that medical reimbursement. So compute the taxable value of perquisite in respect of medical facilities availed by Miss Ramya, an employee of Sham Limited for the assessment year 2021. So if government employee, so they will get medical reimbursement. Okay, whatever the bill, whatever the disease they have, the company pay their bills. So but in private sectors, so there is a ESIC. Okay, so if you are applicable, so you will get it, and otherwise there is a limit. ESIC also have a limit, and some amount have been deducted to your salary, 120, 130. Okay, so ESIC is there. Okay, now treatment of family of Miss Ramya, an employee in a hospital owned by the company. Cost of the employer is rupees 50,000, and treatment of Ramya in government hospital, expenditure to the employer rupees 40,000. Treatment of Ramya mothers in hospital, approved cost to the employer 60,000, and treatment of Ramya's father in a private hospital, cost to the employer as reimbursement rupees 30,000. Means if you are a government employee, so public limited company you are working, so you get whole family medical reimbursement. Okay, so let's we see. यहाँ पे दिया है कि ट्रीटमेंट ऑफ फैमिली मेंबर्स ऑफ मिस रम्या, एम्प्लॉय इन अ हॉस्पिटल ओन्ड बाय द कंपनी, कॉस्ट ऑफ एम्प्लॉयर इज रुपीज 50,000. ठीक है, एम्प्लॉयर ने उसको 50,000 दिया है, जिसमें ट्रीटमेंट में रम्या का जो रम्या ने गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट लिया था उसका 40,000 एक्सपेंडिचर हुआ है, और उसके मम्मी का 60,000 एंड पेरेंट्स का 30,000. तो 50,000 उसको एम्प्लॉयर से मिला है. सेकेंड में क्या है देखते हैं. Compute the taxable value of perquisite in respect of medical facilities availed by Ms. Ramya, an employee of Sham Limited, okay, for the year 2021. Expenditure on medical treatment dependent family members in hospital owned by the employer is tax free. This is the rule. Okay, expenditure on medical treatment of dependent family, अगर family dependent है तो एम्प्लॉयर को जो भी है मेंबर्स इन हॉस्पिटल ओन्ड बाय द एम्प्लॉयर इन टैक्स फ्री. ओके, उसमें टैक्स नहीं लगता है. एक्सपेंडिचर ऑन ट्रीटमेंट ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉय इन गवर्नमेंट हॉस्पिटल, टैक्स फ्री. ओके, देन एक्सपेंडिचर ऑन ट्रीटमेंट ऑफ डिपेंडेंट मदर इज एन अप्रूव्ड हॉस्पिटल इज टैक्स फ्री. अगर आपके फैमिली में जैसे लेडीज अगर जॉब कर रही है और लेडीज पे फैमिली मेंबर्स स्पेशली पेरेंट्स वगैरह डिपेंड है, तो उसको भी क्या मिलेगा, एग्जेम्पशन मिलेगा. ठीक है, टैक्स फ्री रहेगा जो भी वो पेरेंट्स का हॉस्पिटल का खर्चा करती है व्हाटएवर. सो शी विल गेट ऑल expenses tax free and all expenses paid by employer. So reimbursement of medical expenditure for treatment of dependent father in a private hospital is taxable. So therefore taxable value of perquisite
in respect of medical facilities availed in rupees 30,000. Okay, medical facilities 30,000 तक availed होती है, and taxable in the hands of employee only. So medical allowance taxable rupees 30,000. 30,000 तक का employee को टैक्स पे करना होता है, मतलब टैक्सेबल रहता है, बाकी जितना भी आएगा वो एम्प्लॉयर पे करेगा. लेट्स सी. तो ये सिर्फ ध्यान में रखिए मेडिकल. देन हम देख रहे हैं लिव एनकैशमेंट. ठीक है, लिव एनकैशमेंट में क्या है, अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो एग्जेम्प्टेड है ना, जो भी उसको लिव मिले, लिव का कैश मिलेगा वो पे करना नहीं है. नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय में अगर कोई कंपनी देती है तो लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जेम्प्टेड. एक्चुअल अमाउंट ऑफ लिव एनकैशमेंट, ओके, जो एक्चुअल मिला है वो 3 लाख तक उसको एग्जेम्प्ट रहता है. 10 मंथ ऑफ एवरेज सैलरी. ओके, अगर आपका ज्यादा लिव है लेकिन वो 10 मंथ का ही कैलकुलेट करेंगे. एंड कैश इक्विवेलेंट ऑफ लिव सैलरी. सो क्रेडिट एट द रेट ऑफ द 1 मंथ ईयर ऑफ द कंप्लीटेड सर्विस. दैट इज द रूल. क्रेडिट एट द रेट ऑफ 1 मंथ एवरी ईयर ऑफ कंप्लीटेड सर्विस. एक साल, एक मंथ का वो क्रेडिट किया जाएगा. एक सैलरी मिलती है ऐसे समझ लो. देन अभी हम प्रॉब्लम देखते हैं इसका. श्री नरसिंहम retired from service after rendering a period of service 32 years and 9 months. Okay, so at the time of retirement he received rupees 2,50,000 as leave salary from his employer. The following information is provided by the employee. Salary at the time of retirement rupees 10,000. Leave availed while in service 20 months. Okay, 20 months की लीव उसकी अवेल है और रिटायरमेंट के टाइम में उसका सैलरी कितना था, 10,000. एवरेज सैलरी पर मंथ फ्रॉम जनवरी टू नवंबर 2019 रुपीज 9,800. ठीक है, उसके बाद लीव एंटिलमेंट इन 1.5 month फॉर एवरी कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस. डेट ऑफ रिटायरमेंट 31st December 2019. So compute the amount of taxable encashment and gross salary if Narasimham is a government employee or non-government employee. हमें दोनों भी कैलकुलेट करना है, if he is government or non-government. So let's see, start करते हैं. Computation of salary income of Mr. Narasimham 2021 का. गवर्नमेंट एम्प्लॉय एंड नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय. ठीक है, सैलरी अप्रैल 19 टू दिसंबर 19. ओके, अप्रैल 19 टू दिसंबर 19. यहाँ पे कैलकुलेशन किया है, वहां पे इन्होंने बताया है कि जनवरी टू नवंबर 19 कितना आया है उसका, 9,800. ठीक है, तो यहाँ हमने लिया 9,800, मतलब जनवरी टू नवंबर 8 मंथ्स होता है, 10 मंथ्स होता है. कैलकुलेट करो. हमें फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से कैलकुलेट करना है, तो अप्रैल से कैलकुलेट करेंगे, है ना. अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, 8 मंथ होता है, राइट. सो 9,800 into 8. और उसको बेसिक कितना मिल रहा था, लास्ट रिटायर टाइम में कितना सैलरी मिला था, 10,000, तो वो भी ऐड करना है. ठीक है, कितना आता है, दोनों का गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट एट अ टाइम कैलकुलेट करेंगे. जो आता है 88,400. इज 88,400. नाउ नेक्स्ट, लिव एनकैशमेंट उसको कितना मिला है एक्चुअल में, 2,50,000.
गॉट इट? 2,50,000 मिला है। अभी 2,50,000 में से हमें जो ये सैलरी आई है ना, 98,200 माइनस करना है। चलिए कैलकुलेट करिए, 98,200 कैसे आए हैं? कम ऑन। 10 मंथ का एवरेज सैलरी लेना होगा ना हमें, जो कि ऑलरेडी हमें मिला है ना। निकालिए, 9,800 इंटू 9 मंथ कितना आता है? कितना आता है? प्लस 10,000 करिए उसमें। यहाँ पे दिया है ना, लीव एंटिल्ड इज 1.5 मंथ, तो हम completed 1 year, date of retirement 31 December 2019, राइट? तो 1.5 का 1 मंथ तो लेना ही होगा हमें, राइट ना? एक सैलरी का लीव है उसका, तो हमें क्या करना होगा? 10 मंथ का एवरेज सैलरी लेना होगा। तो 10 मंथ का मतलब हम 9 मंथ का कैलकुलेट करेंगे। एक मंथ का हमें 10,000 लेना है, दिया है, तो 9,800 आता है। 9,800 इंटू 9 प्लस 10,000, 1 मंथ का लीव एनकैशमेंट का उसमें ऐड करना है। कैलकुलेट, हैव यू कैलकुलेटेड? आया क्या? हेलो, एनीवन? गिव मी अ रिस्पॉन्स। हेलो, yes, have you calculated or not? I couldn't hear you. Come on, Ritija, Mayura, Akshata, what happened? Pratiksha, have you calculated? It's Yes, coming ma'am. 9,800, 98,200, okay? एंड उधर में नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय का वो भी कैलकुलेट करना है। नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय का कितना लिया है इन्होंने? $9,800 कैलकुलेट किया, उसके बाद जो एक्चुअल लीव एनकैशमेंट है 2,50,000, उसमें से 98,200 हम माइनस करते हैं तो वो आता है 1,51,800। ठीक है, अभी गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, इसे एग्जेम्प्ट है, इसलिए हमने उसके कॉलम में लीव एनकैश मतलब वो लीव एनकैशमेंट का अमाउंट नहीं लिया है, बिकॉज ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉय एंड ही विल गेट एग्जम्पशन। ओके, बट नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय को नहीं है, इसलिए हमने क्या किया, जितना मिल रहा है उसमें से वो माइनस करके 1,51,800 हमने दिखाया है। तो अभी हमारा जो ग्रॉस सैलरी है वो कितना आया है? गवर्नमेंट एम्प्लॉय का 88,400 और नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय का 2,40,200। ठीक है, दैट इज आर ग्रॉस सैलरी। और अभी हम देखेंगे लीव एनकैशमेंट का एग्जम्पशन। ठीक है, तो यहाँ पे वर्किंग नोट में दिया हुआ है कि एग्जम्पशन वैल्यू ऑफ लीव एनकैशमेंट इन द हैंड्स ऑफ नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय इज लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग। एक्चुअल अमाउंट ऑफ लीव एनकैशमेंट कितना था? 2,50,000। परमिटेड मैक्सिमम अमाउंट एग्जेम्प्टेड 3 लाख, जो कि हमने अभी रूल्स में देखा था। ठीक है, 3 लाख तक का हमें क्या है, एग्जेम्पशंस है। सो 10 मंथ एवरेज सैलरी जो हमने निकाला 98,200 आया एटलीस्ट, मतलब सबसे कम
एंड फोर्थ है कैश इक्विवेलेंट टू लिव एट क्रेडिट एट द रेट ऑफ 1 month फॉर एवरी ईयर ऑफ कंप्लीटेड ईयर। तो उसका 32 ईयर्स का सर्विस था, है ना, उसमें से उसका जो भी लिव इनकैशमेंट था 20 ईयर्स का, वो हमने माइनस किया है, गॉट इट, और इंटू 12, और जो भी आपकी सैलरी है उसमें उसको ऐड करके उसका लिव एनकैशमेंट मतलब कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विसेज लेके उसे कैलकुलेट किया है। वो आता है 17,840। So 1 month for every completed year of service and live avail 32 months. ओके, उसकी 32 मंथ्स की लीव थी और उसमें से 20 मंथ्स की क्या किए, माइनस किए, मतलब बाकी सिर्फ बाकी ही मिली उसको, सभी नहीं मिली। वो रूल्स में होता है, इसलिए आप जब भी कोई गवर्नमेंट या प्राइवेट सेक्टर में काम करते हो तो उसका उनका लीव का एक पॉलिसी होता है, आपको उतनी लीव कंप्लीट करनी पड़ती है, अदरवाइज वेस्ट हो जाती है वो लीव, जितना मिलना है उतना ही मिलता है। यहाँ पे भी वही केस है, ठीक है। ट्वेंटी और समथिंग 20 और हाँ 20 और 25 लीव्स ही एवरी ईयर में फॉरवर्ड होती है। अगर आपने ये साल आपकी 40 लीव्स है और आपने लीव ही नहीं ली तो 40 की 40 आपकी फॉरवर्ड नहीं होगी, है ना, 20 ही फॉरवर्ड होगी, इसलिए लीव लेना है। ओके, समझ में आया? किसी को कोई दिक्कत है? नो मैम। थैंक यू। ये प्रॉब्लम है, ये एक देखते हैं। मिस्टर शर्मा रिटायर्स ऑन 30 September 2019 after 20 years of services and received rupees 96,000 leave encashment, 12 months. His employer allow him 1.5 month leave for every 1 year, okay, of service. मतलब 45 days की लीव ही उसे अलाउ करते हैं एवरी ईयर। सो ही हैज ऑलरेडी एनकैश लीव फॉर 18 months। 18 months का वो ऑलरेडी एनकैश कर चुका है। हिज सैलरी फॉर 18-19 was rupees 6,000 and from April 19 it was raised to rupees 8,000। ओके, ये भी देखना होगा। इस तरह से हमें ग्रॉस सैलरी निकालने के वक्त we need to calculate both. Compute the amount of taxable encashment and gross salary if Mr. Sharma is government employee and non-government employee. Okay, let's see. Computation of salary income of Mr. Sharma. So government employee and non-government employee. Salary calculate करिए अप्रैल से सितंबर तक 6 months की 48,000, नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय की भी सेम 48,000, लिव इनकैशमेंट 96,000, मतलब उसे कितना मिलेगा उतना ही हमें कैलकुलेट करना है, ठीक है। एक्चुअल में हमें मिला है 96,000 लिव इनकैशमेंट फॉर 12 month का, एंड हिज एम्प्लॉयर अलाउ ओनली 45 months, 1.5 month, मतलब 1 month की 30 एंड हाफ मंथ की 15, मतलब 30 plus 15, 45 monthly for every year, 1 year. So he has already encashed leave of 18 months. तो उसको already 96,000 में से 18 month का leave encashment माइनस करना है, क्योंकि उसने already तो वो आता है आपका 81,600, कैलकुलेट करना है आपको, ठीक है। गवर्नमेंट एम्प्लॉय के कॉलम में नहीं आएगा बिकॉज एग्जेम्पशन है, तो उसका ग्रॉस सैलरी कितना आता है 88,400। नाउ और इधर कितना आता है नॉन गवर्नमेंट का, नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय का ग्रॉस सैलरी 1,29,600, ठीक है। वर्किंग नोट एग्जेम्प्टेड वॉल्यूम ऑफ leave encashment in the hands of non-government employees list of following। non-government का actual amount 96,000 मिला है, permitted exemption 3 लाख है,
10 मंथ एवरेज सैलरी जो ऑलरेडी हमने पहले प्रॉब्लम में कैलकुलेट कर चुके हैं 72,000, 8,000, मतलब यहाँ पे कैलकुलेशन दिया हुआ है, उस हिसाब से आपको कैलकुलेट करना है. Then cash equivalent to live at credit at the rate of 1 month for every year completed service. ठीक है, वो आता है आपका 14,400 और जो लिस्ट है वही हमें लेना है. तो 14,400 टैक्सेबल रहेगा. ठीक है, लेट मी सी नेक्स्ट. Yes, ma'am. गुड. दिस इज द प्रॉब्लम. ये आप होमवर्क करिए. विजयन रिटायर्स फ्रॉम एम्प्लॉय आफ्टर रेंडरिंग सर्विस 23 years and 8 months. At the time of retirement, he received 4 lakh as leave salary, and his salary at the time of retirement was rupees 14,000 per month. देखिए, गवर्नमेंट एम्प्लॉय का तो हमें कैलकुलेट करना ही नहीं है बिकॉज ऑफ एग्जेम्पशन. अगर नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय का प्रॉब्लम आता है तो ये आपको कैलकुलेट करना है. सो ये आप सॉल्व करिए. इट्स योर होमवर्क. कल का किया क्या सबने? ट्राई किया एटलीस्ट? ये है श्रीधर का. ये भी आप होमवर्क लिखिए. श्रीधर एम्प्लॉय ऑफ एबीसी रिसीव्ड रुपीज 36,000 as leave salary at the time of retirement. On the basis of the following information, determine the amount of taxable leave salary. Basic pay 3,000 per month. कल शायद आपका टेस्ट होगा सैलरी पे. ठीक है, सारे प्रॉब्लम्स दिए जाएंगे. अभी तक हमने सारे प्रॉब्लम्स दिए हैं. Okay, ma'am. कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल लीव एनकैशमेंट ये हमने देखा है. ठीक है, अभी हम देखते हैं रेंट फ्री अकोमोडेशन. परक्विजिट. रेंट फ्री अकोमोडेशन क्या होता है? तो वैल्यूएशन ऑफ अनफर्निश्ड अकोमोडेशन, सेंट्रल गवर्नमेंट लाइसेंस फ्री फिक्स्ड बाय गवर्नमेंट और अदर एम्प्लॉइज. ठीक है, ये रूल्स है. यहाँ से हमारा सेकेंड है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का. ठीक है, चलिए देखते हैं. पहले रूल्स देख लेते हैं कि परक्विजिट्स रेंट फ्री अकोमोडेशन क्या है. रूल्स. ए, वैल्यूएशन ऑफ अनफर्निश्ड अकोमोडेशन, सेंट्रल गवर्नमेंट लाइसेंस फी फिक्स्ड बाय गवर्नमेंट एंड अदर एम्प्लॉय. ठीक है, अभी ये रूल्स ध्यान में रखना है कि पॉपुलेशन ऑफ द सिटी. ठीक है, population of the city. Second column है where the accommodation is owned by employer and where the accommodation is not owned by employer. ठीक है, so population of the city में population is below 10 lakhs. अगर population below 10 lakhs है तो 7.5% of salary जो accommodations का रेंट है वो एम्प्लॉयर पे करेगा या एम्प्लॉय पे करेगा, जो भी है. Actual rent paid by employer or 15% of salary. Okay, अगर employee where the accommodation is not owned by employer, अगर employer का नहीं है खुद का तो 15% सैलरी वो पे करेगा, और अगर एम्प्लॉयर का खुद का है तो वो 7.5% सैलरी के पे करेगा. सेकेंड, पॉपुलेशन इज एक्सीड 10 lakhs बट लेस देन 25 lakhs. जहाँ पे भी जो भी एरिया में हम रह रहे हैं वहां का पॉपुलेशन जो है वो एक्सेड 10 lakhs बट लेस देन 25 lakhs होना चाहिए. तो अगर वैसा है तो 10% ऑफ सैलरी पे करना होगा एम्प्लॉयर को. और सेकंड में एक्चुअल रेंट पेड बाय एम्प्लॉयर और 15% ऑफ सैलरी. ठीक है, थर्ड है पॉपुलेशन इज एक्सीड देन 25 लाख. अब मेट्रो सिटी में तो 25 लाख के ऊपर ही होती है, तो 15% ऑफ सैलरी पे करना है और paid by employer or 15% of salary.
So valuation of furnished accommodation add 10% of cost of furnishing. बी रूल जो है अगर फर्निश्ड है, ये तो हमने अनफर्निश्ड का देखा, फर्निश्ड में 10% ऑफ कॉस्ट ऑफ फर्निशिंग, मतलब अगर जितने भी फर्नीचर 10% ऐड करना है. चलिए प्रॉब्लम देखते हैं. रेंट फ्री अनफर्निश्ड अकोमोडेशन गवर्नमेंट एम्प्लॉय, अच्छे से पढ़ना है. परक्विजिट्स में क्या है? रेंट फ्री अनफर्निश्ड अकोमोडेशन. एम्प्लॉय कौन सा है? गवर्नमेंट एम्प्लॉय है. श्री राघवन एज an officer of the government of Tamil Nadu draw rupees 10,000 per month as basic salary. The government has provided him a rent-free unfurnished house whose market rent is rupees 2,000 per month. Though as per government rules, license fees of the house rupees 500 per month. So determine the value of the perquisite in respect of the rent-free house. Now, since Raghavan is a government employee, so value of rent-free house would be rupees 6,000, means 500 into 12. License fee कितना है? 500. तो 500 into 12 किया तो 6,000 आता है rent-free house का. So being the license-free house is as per the government rules, so market rental value of the house is to be ignored. ठीक है, मार्केट का जो वैल्यू है आज की डेट में उसने कितना दिया है? 2,000 पर मंथ, तो उसे हमें नहीं लेना है. सिर्फ गवर्नमेंट रूल्स के हिसाब से जो लाइसेंस फीस है उसे ही हमें कंक्लूड करना है, लेकिन गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए. गॉट इट? सेकेंड प्रॉब्लम. Venugopal is an employee of AP government during the previous year ending March 31st, 2019. He has been allotted a rent-free furnished flat at Hyderabad. यहाँ पे दिया भी है, कहाँ का है? हैदराबाद, गवर्नमेंट है. Though the license fee of the flats as per government rules is rupees 2,200 per annum. And its market value, fair market rent, is not less than rupees 15,000 per annum. Okay, so the household appliances provided to Venugopal are owned by the employer and cost price of which rupees 40,000. So written down value of the same is rupees 5,000. Employer pays rupees 20,000 as higher charges for 2 air conditions installed throughout the previous year. Compute the value of perquisite. Okay, प्रॉब्लम को अच्छे से पढ़ना है. So यहाँ पे दिया है कि Venugopal is a government employee. Valuation of the perquisite in respect of rent-free furnished flat would be as follows. So हमें पहले ही बोला गया है कि जो भी लाइसेंस फी है उसे ही लेना है, तो 2,200 पर एनम के हिसाब से हमने लिया. ओन्ड बाय एम्प्लॉयर, अभी ये हैदराबाद में है ना, हैदराबाद में है, इसका मतलब वहां का जो पॉपुलेशन है कौन से इसमें आता है? वो 10%, मतलब population in exceed 10 lakhs but less than 25 lakhs. Okay, so 10% salary अगर हमने यहाँ पे उसका कैलकुलेट किया 40,000 into 10% तो 4,000. ठीक है, cost price of which rupees 40,000, so 10% 4,000 and higher charges of furnitures. So वो जो दिया है employers pays 20,000 and higher charges वो लिया है, और 20,000 plus 4,000 is 24,000. Now perquisite value in respect of rent-free furnished flat कितना आता है? 26,200. So depreciation should be always be on original cost on furniture and other household furniture
फर्निश फ्लैट। अब यहाँ पे दिया नहीं है डेप्रिसिएशन, इसलिए नहीं निकाला, बट नोट में लिखा है। अगर आपको कहीं देते हैं तो आपको उस हिसाब से ही कैलकुलेट करना होगा, फर्नीचर का डेप्रिसिएशन ऐड करना होगा, दिया होगा तो। इजी है, सिर्फ रूल्स को फॉलो करना है। जो रूल्स है ना, ये जो रूल्स है ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ये आप होमवर्क करिए, समझिए इस प्रॉब्लम में क्या क्या दिया है, सेम है। ये लिमिटेड कंपनी में है, वर्किंग बंदा मदुरई में, पॉपुलेशन 18 lakhs यहाँ पे दिया हुआ है। ड्रॉज रुपीज 60,000 एज बेसिक सैलरी, 5,000 DA फॉर्मिंग पार्ट सैलरी एंड 6,000 कमीशन भी मिल रहा है, तो इसका ग्रॉस सैलरी, बेसिक सैलरी, ग्रॉस सैलरी कैलकुलेट करना पड़ेगा। Company provide rent-free furnished house to him. The house is the company. Their rent of the accommodation is rupees 5,000 per annum. So income tax, gas, water, and electricity bills paid by employer rupees 4,000 and 6,000. So respectively. So determine the taxable value of the perquisite. सारी चीजें लेना है, उसकी बेसिक सैलरी, उसका DA फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सैलरी कैलकुलेट करना है। अभी तक हमने सैलरी कैलकुलेट किया, तो आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए सैलरी कैलकुलेशन में। कमीशन भी हमने सैलरी में ऐड किया है, ठीक है। फिर उसके बाद आपको डायरेक्ट उसका परक्विजिट निकालना है, रेंट फ्री अकोमोडेशंस का। अभी यहाँ पे दिया है नोट्स में सैलरी प्लस बेसिक पे, सो ऑल टाइप्स ऑफ अलाउंस लेना है उसमें, बोनस, कमीशन, DA, बेसिक पे में, ठीक है। एंड फ्रॉम सर्विस बेनिफिट, सेकेंड में एज अकोमोडेशन इज ओन बाय एम्प्लॉयर, पॉपुलेशन एक्सीडिंग 10 lakhs बट नॉट एक्सीडिंग 25 lakhs, है ना। 18 lakh दिया है मतलब एक्सीडिंग 25 lakhs, तो ये 10% ऑफ सैलरी का ही रेंट पे करेगा, राइट। सो टैक्सेबल वैल्यू ऑफ परक्विजिट जो भी है 10% के हिसाब से देगा। फेयर रेंट ऑफ अकोमोडेशन इज इग्नोर, क्योंकि वो लेना नहीं है, क्योंकि एम्प्लॉयर का है, खुद का, एम्प्लॉयर का ही खुद का है जहाँ पे वो रह रहा है। इनकम टैक्स, गैस, वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी बिल्स आर परक्विजिट, हेंस नॉट टेकन फॉर RFA। ये ध्यान में रखिएगा, ये नहीं आएगा रेंट में। रेंट में सिर्फ फर्निश्ड और अनफर्निश्ड का ही आएगा, ठीक है। ये नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। सेम ये प्रॉब्लम है, आप इसे होमवर्क करें। नेक्स्ट, इसे भी होमवर्क ही करिए। सिंपल सिंपल है सब, सिर्फ रूल्स को फॉलो करना है।
किसी को कोई दिक्कत है? नो मैम। समझ में आया? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये एक प्रॉब्लम है इनकम फ्रॉम प्रोफेशंस का, ठीक है। फ्रॉम द फॉलोइंग स्टेटमेंट कंप्यूट द इनकम ऑफ प्रोफेशन ऑफ डॉक्टर S.K. Kapoor if the accounts are maintained on cash receipt system. Okay, प्लस ये दिया है, ये प्रॉब्लम है। विजिटिंग फीस, कंसल्टेशन फीस, सेल्स ऑफ मेडिसिन, देन डिस्पेंसरी रेंट, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, टेलीफोन एक्सपेंसेस, ये पूरा मिस्टर कपूर का अकाउंट से उसने जो जो एक्सपेंसेस किए वो दिए हुए हैं। टेलीफोन एक्सपेंसेस, सैलरी टू नर्स एंड कंपाउंडर, depreciation on surgical instruments or equipments, purchase of medical machines, purchase of medicines, depreciation on X-ray machine, income tax, donation to Ramakrishna Mission, motor car expenses, depreciation on car. ये एक डॉक्टर का क्या है, अकाउंट्स पेमेंट है, जो विजिट फीस वगैरह ये उसका इनकम है और ये एक्सपेंसेस है। ऑन द बेसिस ऑफ हमें इसका इनकम फ्रॉम प्रोफेशन निकालना है कि वो उसके प्रोफेशन में कितना कैलकुलेट करता है। अदर इंफॉर्मेशन दी है कि इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर चार्जेस इंक्लूड डोमेस्टिक बिल ₹2500, हाफ ऑफ मोटर कार एक्सपेंसेस आर फॉर प्रोफेशनल यूज। ओके, आधा घर के लिए, आधा बाहर के लिए। तो जो बाहर के मतलब उसके प्रोफेशन के लिए वो यूज करता है वही हम लेंगे। तो यहाँ पे दिया है हाफ ऑफ, ठीक है। टेलीफोन एक्सपेंसेस इंक्लूड्स 40% फॉर पर्सनल यूज। ओपनिंग स्टॉक ऑफ मेडिसिन वाज ₹6,000 and closing stock was ₹4,000. So purchase value medicines only is taken for cost of medicines if cash basis is allowed to maintain book. If mercantile basis, cash as well as credit cost of medicine sold is opening stock plus purchase minus closing stocks. ये हमने सब दिया है। On this information basis we have to calculate professional income of Dr. Kapoor. ठीक है, so computation of professional income on the cash basis of Dr. S.K. Kapoor. तो चलिए पहले तो इनकम्स ले लेते हैं, उसे क्या कहाँ से उन्हें इनकम मिलती है। विजिटिंग फीस से उन्हें फॉर्मेट से बनाना है। विजिटिंग फीस से उन्हें 45,000, कंसल्टेशन फीस 1,25,000, सेल्स ऑफ मेडिसिन 72,000। तो उनका असेसमेंट ईयर का जो इनकम है वो कितना है, 2,42,000। ठीक है, नाउ लेस प्रोफेशनल एक्सपेंसेस। प्रोफेशनल एक्सपेंसेस में क्या आएगा, उनका डिस्पेंसरी का रेट, इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर चार्जेस जो हमने ऑलरेडी लिखा है, टेलीफोन एक्सपेंसेस आएगा, सैलरी टू स्टाफ, depreciation on surgical equipment, okay, and purchase of medicines. उसके बाद depreciation on X-ray machine, motor car expenses, depreciation on car. Total it is 1,34,300. Professional gain कितना आया उसका, 1,07,700। ठीक है,
उसका जो 2,42,000 माइनस 1,34,000 किया तो उसका 1,07,700 उसका प्रोफेशनल गेन आया। मतलब उसको इतना इनकम होता है, इनकम फ्रॉम प्रोफेशन से, उसके प्रोफेशन से। यस, उसका जो नोट्स है वो दिया है यहाँ पे कि इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर चार्जेस जो है वो हाफ जो हमने लिया 3,500 माइनस किया है ना, कैलकुलेशन किया। अभी यहाँ पे कैलकुलेशन में कैसे, टेलीफोन एक्सपेंसेस 6,000 के 60% कैलकुलेट किया, मोटर कार का जो भी हाफ ऑफ दिया था, है ना, तो उसका आधा लिया। डेप्रिसिएशन भी आधा ही कैलकुलेट करेंगे क्योंकि 50% ही यूज फॉर होम एंड 50% ही यूज फॉर हिज प्रॉफिट। तो हम यहाँ पे उसका प्रोफेशनल इनकम निकाल रहे हैं, प्रोफेशनल में जितना होगा उतना ही हमें कैलकुलेट करना है। Opening and closings of medicines has been ignored and machine purchase has been treated as expensive because professional income is required to be calculated on cash basis। ठीक है, तो क्लोजिंग स्टॉक हम नहीं लेंगे क्योंकि वो कैश में नहीं होता है ना, और उसका जो मशीन परचेस है वो भी हम इग्नोर करेंगे क्योंकि वो कैश बेसिस पे नहीं है। समझ में आया? इनकम फ्रॉम प्रोफेशन सबसे टफ है ना, वो है सैलरी कैलकुलेशन एंड इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। उसमें रूल्स और ये होगा, रूल्स और कैलकुलेशंस आपको समझ में आ गया। इफ यू अंडरस्टैंड वेरी हाउ टू कैलकुलेट सैलरी, every benefit like HRA, pension, live encashment, provident fund and gratuity also, and live encashment, entertainment allowance, everything if you calculate very well, then after that income from profession, capital gain and income from other source. Okay, income last head, income from other source depends on that four heads. Okay, if you calculate very well income from salary, income from house property, income from capital gain, income from business and profession, then you easily calculated income from other sources. Okay, so now it's easy. So income from income from business profession is very easy. नाउ सेकेंड यहाँ पे हमने लिया है कि प्रोफेशनल इनकम का जैसे हम कैलकुलेट कर रहे, तो डॉक्टर कपूर का जो हमने है वो लिया है। अभी यहाँ पे पहले इसमें हमने कितना लिया था, परचेस ऑफ मेडिसिन, बिकॉज कैश कैलकुलेट किया था। अभी हम कैश बेसिस पे नहीं कर रहे हैं, हम अभी सिंपल वाला कर रहे हैं उसका। तो यहाँ पे भी सेम उसका जो इनकम है 2,42,000 लिया हमने, ठीक है। उसके बाद प्रोफेशनल एक्सपेंसेस में हमने पूरा लिया, डिस्पेंसरी, इलेक्ट्रिसिटी और टेलीफोन एक्सपेंसेस एक्चुअल जो उसने ओनली प्रोफेशन के लिए जो यूज किया है। तो सैलरी ऑफ स्टाफ, डेप्रिसिएशन ऑन सर्जिकल आइटम्स, यहाँ पे डिप्रिसिएशन लिया है, परचेस ऑफ मेडिसिन भी लिया है, ठीक है। ये सब करने के बाद उसका यहाँ पे कितना था है 1,05,700। पहले कितना था 1,07,000, है ना। तो अगर हम एक्चुअल लेते हैं तो उसका कम आता है। और यहाँ पे नोट्स में दिया है कि इलेक्ट्रिक एंड वाटर चार्जेस जो भी उसने लिया, टेलीफोन एक्सपेंसेस, मोटर कार एंड डेप्रिसिएशन व्हाटएवर कैलकुलेटेड, सो परचेस वैल्यू मेडिसिन ओनली इन टेकन फॉर कॉस्ट ऑफ मेडिसिन, जो भी MRP होती है, राइट। सो इफ कैश बेसिस इज फॉलोड टू मेंटेन बुक्स, उसे बुक मेंटेन करना होगा ना, अकाउंट्स मेंटेन करना होगा। सो इफ मर्केंटाइल बेसिस एज वेल एज क्रेडिट, got it, and cost of machine sold is opening stock plus purchase minus closing stock, वो भी उसे लेना होगा। अगर वो बुक मेंटेन करता है तो अकाउंट्स मेंटेन करता है, तो on that basis will his professional gain is 1,05,700 and कैश बेसिस पे अगर वो करता है तो 1,07,700 आता है। बोथ वे से हमने कैलकुलेट किया है यहाँ पे। तो अभी तो सब ऑनलाइन है, डिजिटल है, तो ऑब्वियसली हमें कैश बेसिस करना ही नहीं है, मर्केंटाइल बेसिस ही करना है जो भी आप, और लॉट ऑफ
मेडिकल्स हो या कहीं भी हम सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं, सॉफ्टवेयर में हमें तो डेली बेसिस पे बैलेंस शीट मिलती है। हमने क्या, अगर आप प्रॉपर is a medical practitioner, he gives you following summary of cash book for the year ending 31/3/2020. ओके, चलिए ये देखते हैं। मेडिकल प्रैक्टिशनर है ये, इसका कैश बुक है, ठीक है। कैश बुक में क्या दिया है, बैलेंस दिया है उसका कैश का जो भी होगा, कंसल्टेशन फीस, मेडिसिन, डिविडेंड फ्रॉम यूटीआई, जो भी हुआ जहाँ पे भी वो इन्वेस्ट कर रहा होगा, लाइफ इंश्योरेंस मैच्योरिटी, देन डिविडेंड फ्रॉम एनडीएस, ये उसका इनकम दिया है। इधर एक्सपेंसेस में रेंट का, क्लिनिक का रेंट, परचेस ऑफ मशीन, स्टाफ सैलरी, सर्जिकल इक्विपमेंट, मोटर का एक्सपेंसेस, परचेस ऑफ मोटर कार, ओके, एंड हाउस होल्ड एक्सपेंसेस, ठीक है। अभी अदर इंफॉर्मेशन में वो बोल रहा है कि हाउस होल्ड एक्सपेंसेस इंक्लूड 6,800 insurance premium, 50% of motor car expenses incurred in connection with profession, and car was purchased in December 19, and gift and presents include 3,000, जो भी है relative जो भी, और opening stock of medicines was rupees 4,000 and closing stock was rupees 12,000, ठीक है। Now ये है उसका कंप्यूटेशन। यहाँ पे भी पहले प्रोफेशनल रिसिप्ट्स क्या है, विजिटिंग फीस, कंसल्टेशन फीस, गिफ्ट्स एंड प्रेजेंट्स ऑफ मेडिसिन। इसका जो आया, हाउ मच इट इज, 152,000। नाउ लेस प्रोफेशनल एक्सपेंसेस कितना है, प्रोफेशनल एक्सपेंसेस ऑफ क्लिनिक 3,000, purchase of medicines 38,000, staff salaries 24,000, depreciation on surgical equipment 40,000 into 15%, how much it is, 6,000, motor car expenses 8,000 into 50%, 4,000, depreciation car 1,40,000, जो भी उसने कैलकुलेट किया है 15%, 1.5 यहाँ पे दिया होगा। मोटर कार पे क्या दिया है, 50% motor car expense include connection with profit was purchased in December 2019. Half of it, motor car, yes, 50%. Depreciation on car, अभी वैल्यू लिया उसके 15%, जितने महीने उसने हाफ मंथ यूज किया होगा, डिपेंड ऑन 19 दिसंबर 19 में लिया तो हाफ करना है कैलकुलेशन। लेकिन न्यू जो मशीनरी होती है उसका, न्यू जो कार होती है उसका 1 मंथ का, हाफ मंथ का ही उसने कैलकुलेट किया है यहाँ पे, ठीक है। तो उस हिसाब से इनका जो प्रोफेशनल गेन है वो कितना आया है, 56,750, ओके, 56,750। जो भी एक्सपेंसेस है वो रिसीट में से माइनस करने के बाद। अभी यहाँ पे कुछ नोट्स दिए हैं कि गिफ्ट्स एंड प्रेजेंट्स 8,000, उसमें से 3,000 उसने दिया है, लिया वो 5,000 आएगा। डेप्रिसिएशन और सर्जिकल इक्विपमेंट 40,000 की 15% कैलकुलेट किया, मोटर कार 8,000 पे 15% कैलकुलेट किया है। डेप्रिसिएशन ऑन कार इज यूज्ड लेस देन 180, रूल देखिए 180 डेज से डेप्रिसिएशन का रूल है इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन में, इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन में। सो कार इज यूज लेस देन 180 डेज, सो हाफ ऑफ द डेप्रिसिएशन इज कैलकुलेटेड। 1,40,000 इंटू 15%, ओके, उसके हाफ परसेंट, उसके हाफ परसेंट, ऐसा कैलकुलेशन किया है। So purchase value medicines only is taken for cost of medicines if cash basis is followed to maintain books, and if mercantile basis cash as well as credit, so cost medicine
sold is open stock plus purchase minus closing stock. On that basis, we have to calculate income from business and profession. Yes, anyone? Yes. कोई क्वेरी है? Let me ask. No, ma'am. ये उसका मर्केंटाइल बेसिस का है कैलकुलेशन, ठीक है, जो हमने डॉक्टर कपूर का किया था। पहले हमने कैश बेसिस किया, फिर उसका मर्केंटाइल बेसिस पे किया, तो इस पे ज्यादा आ रहा है उसका इनकम फ्रॉम प्रोफेशनल गेन्स। कितना आ रहा है? 64,750, और कैश बेसिस पे उसका कितना आ रहा था? 56,750। ठीक है, ये आप कैलकुलेट करके देखिए। ये आपका होमवर्क है, ये आप होमवर्क करिए नागेंद्र का। ये होमवर्क है, Okay, ma'am. ठीक है। Yes, ma'am. तो कल एक प्रॉब्लम देंगे, अगर लगे हम तो, अगर आपको समझ में आया तो हम नेक्स्ट वाला चालू करेंगे, ठीक है। और कल टेस्ट का मैं देखती हूँ, ठीक है। इनकम फ्रॉम सैलरी पे ही हम टेस्ट लेंगे पहले चैप्टर पे, ओके। सो Okay, ma'am. प्रिपेयर फॉर टेस्ट। Yes, ma'am. या इसमें कोई डाउट नहीं है ना? No, ma'am. No doubt. ओके, so see you tomorrow. Bye bye, take care, Okay, have a ma'am. good Thank day. you.